Never Mustaka के लिए Hello everyone. Can anyone please tell me, am I audible? Okay, fine. Hello everyone, this is Sakesh Said. And, by profession, I'm an author. And today's session will be about mastering artificial intelligence for tutors and educators. The whole of this, what the traditional system we were having, this whole has now shift to the artificial intelligence. Everywhere we are, just there is just one sound everywhere that what artificial intelligence is. Everywhere you are seeing currently in the present era that artificial intelligence have just engulfed everywhere, every sector of our society. There is, AI and bots and this machine learning and blah blah. So for tutors, it's an really an asset, I can say, that they can just change their whole that traditional system. They can just make their classrooms attractive. They can just make their lesson delivering attractive indeed, and it's too easy for everyone. It's not like कि अब इसके लिए हमें पहले कोडिंग वगैरह सीखनी है या इसके लिए कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड होना चाहिए. It's not necessary. Actually, every one of you, whether you are from an IT background or not, every one of you can just make wonders by using artificial intelligence bots and tools, to just make your classroom attractive, to make just your lesson delivering attractive indeed. It's actually the essence of the current era. It's actually the need of the current era that we should be having this. We should upgrade our skills as a being a tutor. We should upgrade our skills. I'm a tutor myself, and Alhamdulillah, currently rendering my services as a tutor. But we should upgrade ourselves. The first thing, let me start with this disclaimer. The first thing that everyone is talking about, that AI is going to just take our jobs, it's gonna replace the physical teaching and all that. But I may tell you, being in this profession, I may tell you it's not possible. It's not even ethical indeed. The physical teaching is something else, but yeah, AI is just an assistant to you. AI is just a smart assistant, I can say. It's a smart assistant to just make your classrooms attractive, to make your lesson delivering attractive indeed. AI स्पीड लर्निंग में देखो, NEP 2020 का एक कॉन्सेप्ट था blended learning. Why blended learning? Blended learning means that whole shift from the traditional pedagogy is not ethical indeed. कि हम पूरी जो हमारा ट्रेडिशनल दैट जो सिस्टम चलते आ रहा था, अगर हम पूरा इसको डायरेक्टली अब टेक्नोलॉजी पे लेके आए, इट्स नॉट पॉसिबल इंडीड. ना ये पॉसिबल है और ना ही ये इथिकल है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है इसमें. तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट था दैट इज नोन एज द ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड मींस कि वी हैव टू ब्लेंड दिस ट्रेडिशनल with the modern era tools, and artificial intelligence AI tools is one among them by which you can just do wonders. You can just do wonders in your classrooms to make the classrooms attractive. एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात ये भी शेयर कर दूं. देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं जिनको हम जेनजी जनरेशन जो आज की है, ये तो इंस्टाग्राम पे 10 सेकंड 15 सेकंड की रील बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, लाइक अगर हमारा एक टीचर, अगर मैं या कोई और टीचर एक पूरा 1 घंटा क्लास में वन वे कम्युनिकेशन से डिलीवर करता है, एंड कैसे आज की जनरेशन उसको 1 घंटा बर्दाश्त करेगी? इट्स जस्ट फैक्ट कि कैसे एक आज की जनरेशन इनको बर्दाश्त करेगी, हमें बर्दाश्त कर पाएगी. तो हमें क्या करना है? इसके लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है. बाकी रही बात, AI इज नॉट गोना रिप्लेस अस, नेवर AI विल रिप्लेस अस, बट वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ. ऑब्वियसली AI हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, बट द पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग वंडर्स विद AI, एक ऐसा बंदा जो
एआई जानता हो और एआई को यूज करना जानता हो, वो ऑब्वियसली हमें रिप्लेस कर सकता है। इट्स फैक्ट, वो हमें रिप्लेस कर सकता है, बट एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स जस्ट एन असिस्टेंट टू यू, इट्स जस्ट एन असिस्टेंट विद वी पीपल। इससे हम ये जो है अपनी क्लास डिलीवरेंस, अपनी टीचिंग मेथड्स, अपनी टीचिंग जो हमारे स्किल्स है, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। प्लीज आई मे टेल यू, प्लीज म्यूट योर माइक्स। Yeah, so let me tell you one thing, that what AI is. I'm gonna just start with this basic definition. कोई हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे मशीन लर्निंग, डेटा, बिग डेटा एंड ऑल दैट, वही हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। एक सिंपल सी चीज, व्हाट एआई इज, एआई है क्या, कैसे काम करता है, एंड क्यों, कैसे बना ये एआई, किस चीज से ये डेटा लाता है। दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता है एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, व्हाई, अगर ये इंटेलिजेंस है तो व्हाई इट्स आर्टिफिशियल। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये जो अगर ये इंटेलिजेंट है, व्हाई देन इट्स आर्टिफिशियल। बिकॉज आर्टिफिशियल इस वजह से है क्योंकि ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, ये डेटा पे डिपेंड है। डेटा पे डिपेंड है, डेटा कहां से है, ऑब्वियसली थ्रू आउट द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट पे कितना सारा डेटा अवेलेबल है थ्रू वेरियस मीडियम्स। इन फैक्ट आई कैन से, like for example, I'm an author, I have just published my books, तो वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। दैट्स अ डेटा फॉर इंटरनेट। वो इंटरनेट पे क्या है, वो डेटा अवेलेबल है। एंड ऐसे ही बाकी सारा जितना भी है, वी हैव द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पे कितने सारे फोटोज अपडेटेड है, दैट्स अ डेटा, वो सब डेटा है। या हर कोई चीज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, दैट्स डेटा। एंड दिस डेटा इज actually the base where from artificial intelligence, where from this AI gets its insights, just learn these patterns and just make the outcomes for we people. The basic thing that AI uses is a prompt. Now what is a prompt? क्या होता है एक prompt? देखो, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं प्रॉम्प्ट समझाने की कोशिश करूंगा। प्रॉम्प्ट होता क्या है? प्रॉम्प्ट मींस व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग विद अ बॉट। व्हाट इज अ बॉट? बॉट मींस एक एआई का एक टूल जिससे आप बात करते हो। लाइक वी हैव द चैट जीपीटी, हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, चैट जीपीटी इज अ चैट बॉट। ऐसी अपने फेसबुक पे या बाकी मेटा प्लेटफॉर्म्स पे, मेटा देखा होगा, मेटा एआई, हम उस पर कुछ डालते हैं, हम उससे बात करते हैं। जो हम बात करते हैं दैट इज नोन एज अ प्रॉम्प्ट। जब आप एक मशीन से बात करते हो, दैट इज नोन एज अ प्रॉम्प्ट। और जो वहां से हमें रिजल्ट मिलता है, जो वहां से हमें देता है, वो आउटकम देता है, वो हमारा जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें वहां से आंसर करता है, दैट्स नोन एज द कंप्लीशन। इसको कंप्लीशन बोलते हैं। सो प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीशन। आप आज के दौर में अगर आप देखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग सा ब्रांच बन गया है। इसमें आप इंजीनियरिंग एक बैचलर्स मास्टर्स कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। व्हाट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब ये है कि एक मशीन को हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे बात करेंगे, मशीन से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। दैट्स व्हाट वी स्टडी इन द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नाउ जब हम एक बॉट से बात करते हैं, दैट मींस वी आर गिविंग दैट बॉट अ प्रॉम्प्ट। हम उस मशीन को, हम उस बॉट को एक प्रॉम्प्ट देते हैं। अगर आप एक चीज नोट्स करोगे, आप ये खुद भी ट्राई करना, गूगल और इसमें फर्क क्या है ना? पहले तो हम गूगल भी कर सकते थे ना, गूगल पे सीधे सर्च करो, वहां से हमें रिजल्ट मिल जाता था। व्हाट इज द इसमें फर्क क्या आया इसमें? हम फर्क ये है, देखो फर्क क्या है इसमें। अगर आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, लाइक इफ यू आर सर्चिंग ऑन गूगल फॉर एग्जांपल फॉर योर क्लास 8 स्टैंडर्ड, आप क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए एक लेसन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पे। आप क्लाइमेट चेंज पे आप गूगल से पूछोगे, राइट सम टिडबिट्स, राइट सम यू विल गिव अ टॉपिक टू गूगल, इन गूगल जस्ट विल जस्ट सर्च दैट। आप सर्च करोगे और वहां से गूगल क्या आपको देगा? वहां से गूगल आपको लिंक्स प्रोवाइड करता है, जो ऑलरेडी से अपलोडेड होती है इंटरनेट पे, वो आपको लिंक्स प्रोवाइड करता है एंड वहां से आप अपना कंटेंट देख पाते हो। बट डिफरेंस क्या है? एआई में जब आप चैट जीपीटी को या किसी और बॉट को, आप जब जो एआई पावर्ड होगा, आप जब उसको प्रॉम्प्ट देते हो, वहां पे वो पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड आपको पूरा एक लेसन प्लान बना के देता है।
अब ये डिपेंड करता है आप पे, ये डिपेंड करता है हम पे कि आप कितने अच्छे से, आप कितने प्रिसाइजली अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, उतना ही प्रिसाइजली बॉट आपको वहां से रेस्पॉन्ड करेगा। ये है स्किल। स्किल ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी चला रहे हो, दैट मीन्स आई एम अ स्किल्ड, मुझे चैट जीपीटी पता है, यहां से लॉग इन करना है, दैट्स नॉट अ स्किल। स्किल ये है कि मैं चैट जीपीटी से कितना काम अपना करवा सकता हूं, दैट इज स्किल। ओके, चैट जीपीटी से मैं अपना कितना काम करवा सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है कि कैसे मैं प्रॉम्प्ट लिख सकता हूं। जो मैं बात करूंगा एक एआई बॉट से, मैं जो बात करूंगा ये मैं कितने प्रिसाइजली, कितने अच्छे से उसको समझा सकता हूं, ताकि वो मेरा जो काम होगा, मेरी जो नो मेरे जो मुझे जो चाहिए होगा उससे, कि वो मुझे प्रॉपरली वहां से रिजल्ट दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेसन बनाना है, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल कोई लेसन बनाना है, मुझे कल क्लास 8th में जाना है, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में जाना है। नाउ आई नीड अ लेसन, मुझे लेसन डिलीवर करना है। ऑब्वियसली मेरे पास एक डायरी होती थी, पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, डायरी होती थी, डायरी मेंटेनेंस। ऑब्वियसली डायरी मेंटेनेंस, इसको हम नकार नहीं कर सकते कि डायरी बनानी नहीं है। अब यही डायरी जो हमारे पास थी, जिसके लिए हमें आवर्स लगते थे, या चलो हाफ एन आवर लगता था लिखने में एंड बाकी वो सब चीजें करने में, फिर भी वो उतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाता था। आज मेरे पास ये फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, मुझे उतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करूं मैं उतना टाइम स्पेंड? मेरे पास स्मार्ट वेज है। वी नीड टू बी स्मार्ट। सिर्फ मतलब इस वेबिनार का या इन सेशंस का मतलब ये है, हाउ वी कैन मेक टीचर स्मार्ट। स्मार्ट कैसे? स्मार्ट स्पाइक्स चढ़ाने से नहीं, but how we can use these AI bots, how we can use this modern technology to make our skills upgraded। अपनी skills कैसे हम upgrade करें, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, कैसे क्या डिफरेंस है प्रॉम्प्ट लिखने में। फिर थोड़े से हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ बोर्ड्स आपको दिखाऊंगा जिनको यूज करके आप अपने क्लासरूम को अलूरिंग बना सकते हो, आप अपने क्लासरूम्स को इनफैक्ट आप वंडर्स कर सकते हो अपने क्लासरूम्स में। मैं आपको कुछ बोर्ड्स दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। वो प्रेजेंटेशन जो अगर आप पीपीटी यूज करके बनाओगे, वैसी एक तो बनेगी नहीं, दूसरा जब आप पीपीटी बनाओगे, जो प्रेजेंटेशन आप 10 दिनों में, या इवन के 5 दिनों में, एक दिन में, 2 घंटों में, 1 घंटे में बना सकते हो, वो यहाँ पे आपको फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। एक और चीज, हमारे पास कितनी जो रिसोर्सेज हमारे पास है, लाइक बुक्स है हमारे पास रेफरेंसेस होती है इतनी मोटी मोटी 600 700 800 पेजेस की। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कब तक हम पढ़ेंगे वो, कब तक हम 600 पढ़ेंगे, 600 पेज पढ़ेंगे? मैंने क्या किया काम, फॉर एग्जांपल मुझे पेरेंटिंग पे एक लेसन चाहिए, मुझे पेरेंटिंग सीखनी है कि कैसे मैं पेरेंटिंग कर सकता हूँ। आई एम ए पेरेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं पेरेंट हूँ, 1 2 3 4 बच्चों का पेरेंट हूं मैं, मुझे सीखना है पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग के लिए मैं क्या कर सकता था, मेरे पास ट्रेडिशनल वे में क्या था, मैं बुक लाता, पढ़ता, या इंटरनेट पे गूगल्स करता, कौन से वेज है, क्या क्या मुझे करना चाहिए। तो उतने फिर भी मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता इस चीज को। नाउ मेरे पास एआई है, मैं क्या करूंगा, एआई में जाके प्रॉम्प्ट डाल दिया, गिव मी 10 जो सबसे अच्छी बुक्स है पेरेंटिंग पे पूरी दुनिया में जो पब्लिशड है, वहां पे मुझे दे दो उसका नाम। वहां पे ओब्वियसली नाम आ जाएगा। ओब्वियसली 10 बुकें, अगर मैं 10 बुक्स लाता भी हूं, उनको पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एंड टाइम ही नहीं, पढ़ भी नहीं पाऊंगा मैं 10 बुक्स, कब तक मैं पढ़ूंगा? तो वहां पे मैं क्या करूंगा, उन्हीं 10 बुक्स का बोलूंगा, एआई को ही बोलूंगा कि मुझे इन 10 बुक्स की क्रक्स बता दो, कि क्रक्स है क्या, इसमें क्या मैसेज है इसमें। इवन के वर्ड्स भी डाल सकता हूं कि इतने वर्ड्स में बता दो, इतने इस टाइम ड्यूरेशन में बता दो। तो ये मुझे देगा, मुझे वो पढ़ना है, मैं सीख जाऊंगा। तो बाकी सारा कुछ, दिस इज द स्मार्ट वे। अपना टाइम भी बच जाएगा, एंड ऑब्वियसली हमारा काम भी हो जाएगा, और सब कुछ इतना इजीली इजीली हमारे पास फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। अगर आज के दौर में भी मैं ये सब चीजें खुद से करूं, अगर आज के दौर में भी मैं ये सब चीजें अपना टाइम यूज करके करूं, तो ऑब्वियसली हम खुद को स्मार्ट नहीं बता सकते। सो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैं एक्चुअली ये शेयर करूंगा स्क्रीन आपके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी पे, सबसे पहले चैट जीपीटी ये आता है क्यों, क्योंकि बड़ा कॉमनली यूज है, और एटलीस्ट ये तो सबों को पता होगा, चैट जीपीटी तो सबों को एटलीस्ट पता है कि चैट जीपीटी ये जो है
असल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एआई का मतलब ही जानते हैं, एआई है ही चैट जीपीटी, बट इट्स नॉट जस्ट द चैट जीपीटी। बहुत सारे बॉट्स और भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और भी है, जैसे चाइना ने डीप सीक बनाया है, ऐसी बहुत सारे और है जो मैं अभी दिखाने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल तो हम चैट जीपीटी स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स इजी एंड इजी टू यूज, एंड इससे हमारा बहुत कुछ काम हो सकता है चैट जीपीटी। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी लॉग इन करने की कोशिश करूंगा। चैट जीपीटी, लो चैट जीपीटी, यहाँ पे साइन अप वगैरह ये तो इजी है, साइन अप आप कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपकी हिस्ट्री जो है सेव रहेगी, फिर जो भी आप सर्च करोगे ये बार बार आप फिर देख भी पाओगे। तो ये तो इजी इजी बात है। तो इसके बगैर मैं आपको क्या दिखाऊं, ये दिस इज चैट जीपीटी। नाउ चैट जीपीटी इज आस्किंग मी आस्क एनीथिंग, दिस ask anything. Now what is this ask anything? That means chat gpt is asking me that give me a prompt। जो मैं अभी प्रॉम्प्ट आपको समझा रहा था, ये मुझे अब पूछ रहा है एक प्रॉम्प्ट दे दो मुझे कि आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम इस बेसिक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल इससे आपको ये भी समझ आएगा कि गूगल और चैट जीपीटी में कितना फर्क है, वाई इट इज इंटेलिजेंट, दिस एआई वाई इट इज इंटेलिजेंट। देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग चैट जीपीटी, जीपीटी टेल मी हाउ टू रॉब अ बैंक। फॉर एग्जाम्पल मैंने जीपीटी को ये बताया कि एक बैंक में चोरी कैसे करते हैं। देखो जीपीटी मुझे क्या बता रहा है वापस से, जीपीटी मुझे वापस से क्या बता रहा है, जीपीटी मुझे बता रहा है that this content may violate our usage policy if you are interested in learning how bank security works। देखो that means something is intelligent there, वहां पे कोई इंटेलिजेंट है, कुछ तो इंटेलिजेंट चीज है जिसने ये किया कि जो मैंने इसको पूछा ये क्या है, ये अनएथिकल है। तभी देखो कंटेंट रिमूव आ गया, जो मैंने पूछा इसने रिमूव ही कर दिया, क्यों, क्योंकि ये पूरा अनएथिकल था। अब यही चीज अगर मैं गूगल से पूछ लूं, यहाँ पे गूगल है, मैं गूगल से पूछ लूं हाउ टू रॉब अ बैंक, मैंने गूगल से पूछा, देखो गूगल क्या आंसर करेगा, हाउ टू रॉब अ बैंक। गूगल इज गिविंग मी द लिंक्स, विकिपीडिया की लिंक्स। यहाँ पे ऑब्वियसली होगा कि पहले कब चोरी हुई है, ऐसे वैसे कुछ, ये मुझे लिंक्स दे रहा है। दैट मीन्स ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंस। ये फर्क है चैट जीपीटी और किसमें, चैट जीपीटी और गूगल में। चैट जीपीटी बिकॉज इट्स इंटेलिजेंट, बिकॉज इट वर्क्स विद द ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम करता है। बिकॉज जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वो कहां से आया है, दैट्स बिकॉज ये आया ही है ह्यूमन इंटेलिजेंस से। एंड ये जीपीटी जो है ये इन्हीं चीजों से ट्रेन किया गया है एआई, तभी ये इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। और आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये इसकी इंटेलिजेंस अपनी नहीं है, इट वर्क्स ऑन द ह्यूमन इंटेलिजेंस, तभी हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। नाउ चैट जीपीटी, अब हम चलो सीखते हैं कि चैट जीपीटी में हम लेसन प्लान बनाए कैसे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैं डाल दूं आपको, I have to deliver, I have to deliver a lesson, I have to deliver a lesson for grade 8th, for grade 8th on climate change, on climate change। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया इसको, दैट मुझे ग्रेड 8th का लेसन देना है। एंड चैट जीपीटी मुझे क्या दे रहा है वहां से, इसने मुझे दिया क्लास 8th ग्रेड चेंज, पूरा लेसन बना के दिया। इसमें इसने डिस्कस किया इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इवन कि ये भी बताया कि आप कितने मिनट्स तक ये चीजें डिस्कस करोगे, कॉज ऑफ एलिमेंट क्लाइमेट चेंज 10 मिनट्स, वेदर वर्सेस दिस एंड, और जो भी है इसने ये बता दिया ना। देख लो, अगर अगर मुझे, मैंने प्रॉम्प्ट क्या डाल दिया, ये मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाला था कि मुझे डिलीवर करना है इतना सारा कुछ, ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला था। बट नाउ हाउ कैन वी राइट अ स्किल्ड प्रॉम्प्ट जो मुझे असल में चाहिए। देखो मैं यही चीज इसको फिर से पूछूंगा, ये जो मैंने यहां से पूछा यही चीज मैं इसको फिर से पूछूंगा, लेकिन थोड़ा और एक तरीके से। ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, फिर से मैं इसको यही पूछूंगा, आई हैव टू डिलीवर अ लेसन फॉर ग्रेड 8 ऑन क्लाइमेट चेंज। द टाइम ड्यूरेशन, द टाइम the time duration is 30 minutes, 30 minutes, discuss
everything in detail with examples, with examples, with examples. फिर से मैंने यही चीज पूछी, थोड़ा सा इनहेंस किया अपने प्रॉम्प्ट को. नाउ लुक, ग्रेड 8th लेसन पूरा इसने सिस्टम ही चेंज कर दिया. इवन कि टाइम ड्यूरेशन इसने दे दी, पूरा ये एलिमेंट चेंज, और इसको एक एक करके इंट्रोडक्शन इसका एक्सप्लेन, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल. दिस इज नाउ. अब ये चीजें किसको पता है? ये टीचर को पता है. ये टीचर डिस्कस करेगा. अब ये टीचर को पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या. दैट मीन्स जितना आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, उतना ही जीपीटी या कोई बॉट आपको वहां से कंप्लीशन अच्छा दे सकता है. नाउ अनदर थिंग इज देयर, जो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा. दैट इज दैट इज दैट इज That's how to write VBA codes. VBA codes क्या होता है? VBA codes for this topic. Give me the VBA codes for this topic. देखो, अब हम कोडिंग बैकग्राउंड से है नहीं. एग्जाम्पल, टीचर कोडिंग बैकग्राउंड से है नहीं. अब टीचर कैसे इसी चीज को पावर पॉइंट में डाल सकता है? देखो, पावर पॉइंट में हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है. मैं सीधे इसी टॉपिक का, इसी प्रेजेंटेशन जो इसने मुझे बना के दी, इसी के VBA कोड्स मांग रहा हूं जीपीटी से. एंड यही VBA कोड्स ये मुझे कोड्स देगा वहां से, जो मैं डाल दूंगा किस पे? जो मैं डाल दूंगा पावर पॉइंट में. एंड वहां से बनी बनाई प्रेजेंटेशन मुझे मिल जाएगी. बनी बनाई प्रेजेंटेशन मिल जाएगी. VBA codes for generating a quiz worksheet in Excel. VBA automatically creates a climate change in PowerPoint. ये सब चीजें मुझे फॉर PowerPoint. हाउ टू यूज दीज कोड्स, ये आपको सब कुछ बता रहा है. दीज आर द कोड्स. ये यहां से सिर्फ कोड्स आपको कॉपी करना है, पावर पॉइंट में पेस्ट करना है, और वहां पे आपको सीधे बूम एक पूरी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी. नहीं तो देखो, ये कोडिंग लिखने के लिए एक प्रॉपर मेथड होता है. ये पाइथन, जावा वगैरह कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है. ये 3-4 साल का एक पूरा कोर्स होता है, तब जाके ये कोर्स लिखने आते हैं. बट यहाँ पे with using these technology you have nothing to do with the what course actually is. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बना बनाया आपके पास ये यहाँ पे अवेलेबल है. आप यहाँ से कोर्स डाल सकते हो, यहाँ से कॉपी किया, पावर पॉइंट में डाल दिए, VBA कोर्स डाल दिए, वहां पे यही प्रेजेंटेशन सैम आपको मिल जाएगी, वो भी विद इन सेकेंड्स. ठीक है, ये कुछ चैट जीपीटी. हाँ, एक्सेल में भी आप डाल सकते हो. इन एक्सेल फॉर एग्जांपल, आपको एक्सेल वर्कशीट्स बनाने हैं इन एक्सेल. ये हो गया जो अभी आया, वो तो पावर पॉइंट के लिए. अगर एक्सेल में आप नीचे एक्सेल लिख सकते हो, ये नीचे आपको ओपन एक्सेल पूरा आपको समझा रहा है कैसे ओपन एक्सेल, प्रेस ऑल्ट प्लस F11, ये सब चीजें, और नीचे कोड डालोगे. ये सब मेथड्स फॉलो करके ये कोड डालने हैं. तो ऑब्वियसली जो ही आप कोड डालोगे, you will get a proper presentation. This is how ChatGPT actually works. This is how ChatGPT actually works. And now another thing is that देखो, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, अटैच, सर्च, रीजन. अटैच आप कर सकते हो. आपको फॉर एग्जांपल लॉग इन करके आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे. अटैच कर सकते हो, आप फोटो डाल सकते हो. जैसे आपके पास कोई फोटो है, आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, अटैच किया फोटो, इससे पूछा, ChatGPT will give you the whole crux, whole detail of this photograph. जो भी आप इससे पूछोगे, ChatGPT आपको ये सारा कुछ देगा. अब थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे some other platform other than ChatGPT. Other than ChatGPT is there. For example, we have another platform that's known as the Perplexity. Perplexity.ai. Perplexity.ai ये दूसरा प्लेटफॉर्म है जो AI पावर्ड है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, यही चीज मैं इसको पूछूंगा, यही चीज मैं इसको पूछूंगा. तो परप्लेक्सिटी भी एक AI पावर्ड ऐप है हमारे पास.
तो यहाँ से आपको साइन अप वगैरह करने हैं जो इजी होता है। तो परप्लेक्सिटी से भी मुझे ये सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसके बाद परप्लेक्सिटी एक है, आप खुद इनको ट्राई करें, ये इतना इजी है, आप खुद कर सकते हो और कोई इसमें उतना ये नहीं है। मैं आपको कोई चीज पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ट्राई दीज थिंग्स। देखो हर कोई, वो एक बड़ा फेमस कोट है दैट नेसेसिटी इज द ये जो इन्वेंशन होती है, कोई भी इन्वेंशन होती है, ये नहीं हुई होती, बट ये जस्ट किस तरीके से होती है जब इसकी जरूरत पड़ती है। आज हमें इस चीज की जरूरत है, तो जब हम आज ये खुद से यूज करना सीख जाएंगे, ओब्वियसली ओब्वियसली ये सब चीजें जो है हमें खुद खुद ही आ जाएंगी, उतना कोई बड़ा मसला नहीं है। परप्लेक्सिटी, इसके बाद gamma.ai, यू जस्ट राइट इट डाउन, ये मैं शेयर भी करूंगा। अगर आप इसको लिखोगे भी gamma.ai, इसमें आप बनी बनाई प्रेजेंटेशन बना सकते हो। जो ही आप इस पे लॉग इन करोगे तो वहां पे प्रॉम्प्ट दिया, जो ही क्लिक करोगे तो वहां पे देखो इंस्टेंट प्रेजेंटेशन वेबसाइट, आपको वो कोड्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए कोड्स मिल सकते हैं ऑन gamma.ai। इसमें जो है फिर सीधे स्लाइड्स डाउनलोड हो जाएंगी, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो तीन चीजें फिलहाल, एक तो हो गया gamma.ai, परप्लेक्सिटी एंड ओब्वियसली द चैट जीपीटी इज द फर्स्ट। चैट जीपीटी इतना ही नहीं है जितना मैंने बोला, ओब्वियसली कितना मैं इस छोटे से जो टाइम है, हमारे पास कम टाइम बचा है, तो इसमें कितना मैं डिस्कस कर सकता हूं। तो थोड़ा सा आपसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करूंगा, ताकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ओब्वियसली वो बड़ा एक पूरे दिन का तकरीबन होगा। ये सिर्फ मैंने ट्राई करने के लिए इसको ये किया था कि हम थोड़ा सा अपडेटेड रहे। तो उस दिन पूरा एक दिन होगा इस पे, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही। तो पूरा दिन हम लेंगे इस पे ऑन एआई, कैसे ये काम करता है, क्या होता है डेटा, हर एक चीज डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लेकिन फिलहाल मैं आपसे फीडबैक लेने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो एआई हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इन चीजों के बारे में कि कैसे हम इस चीज से फायदा हासिल कर सकते हैं? एनी वन ऑफ यू प्लीज unmute yourself if you can speak for a little. I need just the feedback, please. इतने ही टाइम में मैं उतना नहीं बता सकता, but it is just the beginning, and inshallah I promise you that in next week we will have a full day session on this artificial intelligence and data, big data, everything. So please, can any one of you just give me the feedback, please? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है सर? अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अच्छा सर। You have taken a very nice initiative and hope in coming days as per your this program is a very It was just as well as it was just an introductory session. It was just an introductory session. Just I request you people that जो ग्रुप है उसमें जितना आप शेयर कर सकते हो ये टीचर्स तक पहुंचा, ताकि पार्टिसिपेंट ज्यादा रहे ऑफ दैट। बट ये सिर्फ एक सोलो कंट्रीब्यूशन है। मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे पास जरा सा भी किसी चीज के बारे में नॉलेज है, मैं बस इसको डिलीवर करना चाहता हूं कि ये आगे जाके सबून तक पहुंचे। इट्स जस्ट एन मैंने स्टार्ट करा है थोड़ा सा नोबल कॉज, एंड ये मैं आपको बता दूं कि आगे हमारे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। मैं रोजाना बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात करता हूं। इंशाल्लाह इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इन कमिंग फ्यूचर। बट सिर्फ ये वहां तक अगर आप शेयर कर सकते हो कि टीचर्स को बता दो कि इस ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन करें तो पार्टिसिपेंट्स हमारे मैक्सिमम हो। एंड ऑब्वियसली दैट विल बी अ पेड सेशन, नॉट फॉर टीचर्स पे नहीं करेंगे, हम पे करेंगे, ताकि पूरा दिन का जो हमारा ये जो रूम है ऑक्यूपाई हो सके। क्योंकि आपको पता है जूम पे सिर्फ फ्री में 40 मिनट्स ही अवेलेबल होते हैं, तो हमारा पूरे दिन का ये खरीदने के लिए हम पे करेंगे, ताकि ये प्लेटफॉर्म हमारा जो है एक इससे कुछ फायदा पहुंच जाए हमारी जो कमिंग जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा अपना इसमें योगदान दें। इसके लिए ये चीजें हम कर रहे हैं। आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, मैं ऑब्वियसली उतना सारा कुछ नहीं बता पाया इसमें। 40 मिनट में कितना बता, उसमें भी पहले 10 मिनट निकल जाते हैं वेलकम से ही, वो सब इन सब चीजों में।
लेकिन आई प्रॉमिस यू कि इन कमिंग फ्यूचर आप जितना आगे इसको टीचरों तक बढ़ा सके ताकि हमारी जो रीच है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम हो और हमारी मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। वी विल आई एम ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। हम इसका ऑफलाइन वर्जन भी बना रहे हैं, हम इसका ऑफलाइन भी करा देंगे, इवन के हर एक स्कूल में कराएंगे इंशाल्लाह। तो ताकि हमारा इससे कोई फायदा हो, हमारा इससे हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनको फायदा हो, क्योंकि हमारे पास आज इतना रिसोर्स अवेलेबल है। अब देखो हर एक स्कूल में आईसीटी लैब है, हर एक स्कूल में केएल सेंटर्स है, इवन की स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल है, एलईडी स्क्रीन्स अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करा है, अब टाइम हमारा है हम चेंज हो जाए, हमें चेंज होने की जरूरत है। और ये कोई ये नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन है चेंज होने का, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है हमारी चेंज होना। अगर हम चेंज नहीं हो पाए तो ऑब्वियसली विद जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है उसमें हम